Okay, so formal good evening to all of you. Here we are on to the second lecture of our revision for MCQs and scenario-based questions for strategic management for May 22 onward exams. Chaliye, we did 50 questions yesterday. Today we are on 51st. Let's continue. Last year, the part of organizational change process project Zeta was implemented by CTO. CTO बोले तो Chief Technology Officer of Omega Private. Zeta being an AI-enabled tool uses machine learning technology to speed up transformation of various business processes and operations across finance, sales, delivery, human resource, and departments. Likewise, the unfreezing phase of the change process has been successfully completed, and wholly employees recognize and accept for change. The company now wishes to reassign new patterns of behavior based on three processes of compliance, identification, internalization. Kindly identify and mark the correct person who gave this model. Question 51. Who gave this model? Sir, Kurt Lewin. बराबर. Kurt Lewin gave this model. और आपके स्टडी मटेरियल में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये मैं बता दूं. आपने अगर स्टडी मटेरियल देखोगे तो वहाँ फंस जाओगे. वहाँ कर्ट लुइन की जगह उनने HC कैलमन दिया है, जबकि है कर्ट लुइन. 52. The audit committee of Theta Limited, on observing a sluggish growth, has advised a radical internal digital transformation. A strategy was proposed to identify problem areas, correct the strategic approaches, and have not been effective so far. The strategy auditor, while measuring performance, has identified gaps in flow between order booking by sales and dispatch of product by the delivery department, which amounts to success of one department means failure of another. With reference to Richard Rummel criteria for strategy audit, identify and mark the correct evaluation criteria to be adopted. बताइए. CCFA ऐसा कुछ याद आ रहा है? कंसिस्टेंसी, कंसोनेंस, फीजिबिलिटी, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? आप लोगों के पास अगर SM के नोट्स हों तो SM के नोट्स में लास्ट चैप्टर का लास्ट पेज है ये. नोट्स लेके बैठे हो या ऐसे आ गए मस्ती में? भाई देखो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ मेरे को. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट? आंसर दो भाई. 52 का ऑर्डर मिलता है लेकिन डिस्पैच नहीं होती है, तो मतलब हम लगत काम कर रहे हैं या देर आर ब्रेकेज, तो कंसिस्टेंसी का इशू है. क्वेश्चन ये है कि स्ट्रैटेजी ऑडिटर अपॉइंट करा है, स्ट्रैटेजी ऑडिटर. तो स्ट्रैटेजी ऑडिटर ने देखा कि ऑर्डर मिल तो जाता है लेकिन प्रोडक्ट डिस्पैच होने में टाइम लगता है, मतलब हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, तो कंसिस्टेंसी का इशू है. आया? 53. आज तुम लोग पढ़ाई करके नहीं बैठे हो बॉस? कंसिस्टेंसी चाहिए ना बेटा, एक रूपता नहीं चाहिए. लास्ट चैप्टर नहीं आता एचवी, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज एंड नॉट अ वेरी वैलिड एक्सक्यूज. You have been given chapters, you have been taught chapters, as well as you have been given videos also to be seen. अगर आपकी प्रायोरिटी में नहीं रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये बोलने से नहीं होगा. लास्ट चैप्टर नहीं आता, ये स्कूल की आदतें छोड़ दो. Sir, Dr. Raman has been running a nursing home for about 22 years now and has gained enormous name of his benevolence in Balram district of Chhattisgarh. Recently, his daughter Radhika completed her medicine from US and returned home to part of her father's practice. She has given me the baton to promote modern medicine and retain the local skilled youth in their practice. However, the nursing home skilled youth has been more inclined to e-commerce employment. Dr. Radhe has taken as a challenge to imbibe the very essence of service in them by being employed as nurses and caretakers of the ill.
This shall be very crucial in growing the practice as desired. Which of the following phases of Kurt Lewin change model will be most challenging for Radhika to strategically positioning her father's nursing home? 53. सर वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो लोग बाहर जाना चाहते हैं और हम लोग उनको यहीं रखना चाहते हैं, तो हम बदलाव देना चाहते हैं। बदलाव में उनको क्या होगा? सर सबसे पहले आपको इंटरनलाइजेशन कराना पड़ेगा। इंटरनलाइजेशन का मतलब है जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और हम दोनों बराबर हो गए हैं। मतलब मुझे जब मेरा ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मैच होते हुए दिखता है तो मेरे में कमिटमेंट बढ़ जाता है, और दैट इज व्हाट शी हैज टू डू। सो द आंसर इज 53 का थर्ड ऑप्शन, इंटरनलाइजेशन। मोहित बाबू ट्रांजिशन नहीं है, नर्सिंग होम्स स्किल्ड यूथ है, समझना। नर्सिंग होम का स्किल्ड यूथ है, मतलब वो नर्सिंग होम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको ये समझाना है कि सेवा करना परमो धर्म है। मतलब जो सेवा भाव उनकी बिटिया लेके आई है वो उनको नर्स को भी सिखाना है और वहाँ केयर टेकर को भी सिखाना है। वो लोग नॉर्मल लोग नहीं है जो शहर में घूम रहे हैं और ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। वही गलती समझ में आई बेटा, ट्रांजिशन शैल नॉट बी द आंसर। और फ़ॉन्ट इसलिए छोटे हैं कि क्वेश्चन का केस बहुत बड़ा है, अगर ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो फिर दो दो स्लाइड में जाएगा मामला। हिनल, ये आपके पास भी पीडीएफ होगी बेटा, अगर आपने डाउनलोड या प्रिंट नहीं करी है तो। द मैनेजमेंट ऑफ वड़ाकारा लिमिटेड हिट हरतो। हिट हरतो मतलब अब तक, हिट हरतो का मतलब होता है अब तक। A successful ball valves maker headquartered in Mumbai is looking to launch a new SBU in future forward integration plans abroad in Sudan. The CEO is now faced with the opportunity come challenge to make this foray into Sudan a successful one but time-bound business enterprise. The CEO has asked his India operations head to make a study of Sudan present market condition and territory-specific laws to enable the setup of local branch. Meanwhile, the HR has come across a promising resume of person on LinkedIn, a social networking platform, which currently engage in a similar deputy CEO position in another entity. The management is also in touch with a couple of NRI angel investors based out of Singapore to arrange the venture capital would require. For strategic management perspective, Vadkara is presently represented by which strategic time phase? बताओ। Formulation, change, implementation, internalization. क्वेश्चंस, स्ट्रैटेजी। अच्छा, मैं इंडिया का बिजनेस बंद कर रहा हूँ या चालू रखूंगा? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। इंडिया का बिजनेस बंद करूंगा या चालू रखूंगा? सर आप चालू रखोगे, करेक्ट। अब मैं नया एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो एक्सपेंशन करने के लिए मैं सोच रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ एचआर की स्टडी करो, वहाँ के लॉ की स्टडी करो, एक आध आदमी भी ढूंढो। तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब मैं डिसाइड कर चुका हूँ चालू करना या चल रहा है मामला? सर मामला चल रहा है। तो मामला चल रहा है किस में दिखेगा? सर वो फॉर्मुलेशन में आएगा सर, 54A। $55. Get Well Soon Limited is a health provider and has only large edge of town hospitals. It is considering setting up small city center clinics capable of treating less serious day cases. Which of the following will fall under implementation? Acquiring clinics, hiring, transferring staff, publicity so that patients know where and when to go, liaison with the general practitioners in the main hospitals. भाई छोटे शहरों में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्लिनिक भी लेने पड़ेंगे, स्टाफ भी लेना पड़ेगा, पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी और लाइसेंसिंग भी करना पड़ेगी। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 सर, ABCD। बराबर। 56. Aditya Swarup is the head of operations of Bindal Sons Private Limited. He is focusing on total or aggregate management function in sense of embracing the integrated activities of a complete department.
He assures the resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organization objective. He is practicing as a head of operations. His focus is on total or aggregate management functions in sense of integrating activities of a complete department. He assures the resources are obtained and used effectively and efficiently. और एक डिपार्टमेंट में नहीं काम कर रहा है he is not in strategic control. ये डायरेक्शन सेटिंग नहीं हो रही है, ये रेगुलर वर्क हो रहा है. तो ये आंसर आएगा मैनेजमेंट कंट्रोल 56B. रिद्धि का आंसर गलत है. रिद्धि बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए नहीं क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट का काम नहीं कर रहा. आप ध्यान से पढ़ो. एग्रीगेट मैनेजमेंट फंक्शंस इन सेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग द इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्लीट डिपार्टमेंट. He is ensuring that resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of organization objective. 57. You are working as a senior manager. You are entrusted with the task of putting a strategy in place and see that it is implemented properly. Out of the following, what is the most important thing you will have to prepare your organization for? Putting a strategy in place and see that it is implemented properly. तो स्ट्रैटेजी बनाना और फिर इम्प्लीमेंट करना. सर एक तो मेरे को देखना है कि इम्प्लीमेंट हो रही है बराबर, तो एक तो कंट्रोल वर्ड आएगा मेरे सामने. बराबर. और क्या आएगा? पुटिंग अप अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस. तो स्ट्रैटेजी गॉट इट. क्योंकि ये दोनों तो नहीं हो सकते. तो 1 and 4 का कॉम्बो है ऑप्शन 3. बराबर. You are the operations manager, and your top management wants to adopt a strategy that you don't endorse. मतलब जो सेड बोल रहे हैं वो आपको जम नहीं रहा. What problems would this lead to an implementation of the strategy? Sir, it will lead to which problem, sir? No problem, coordination, technical, behavioral. सर सेठ जो बोलता है मेरे को जमता नहीं है, तो सेठ और मेरी जमेगी नहीं. जमने मतलब कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगा साहब. 58. आया ना? बिहेवियरल प्रॉब्लम इंडिविजुअल से स्पेसिफिक होता है सक्षम. बिहेवियरल प्रॉब्लम इज पर्सन स्पेसिफिक. आफ्टर एन अर्नेस्ट का मतलब होता है सिंसियर attempt to bring in change in your organization, you the operational head of XYZ succeeded, but still your organization couldn't achieve the desired competitive position in the market. Out of the following, what could be the reason? आप बदलाव तो ले आए लेकिन आपको वो फायदा नहीं मिला, तो गलती कहाँ हुई होगी? फॉर्मुलेशन तो सही था, बदलाव ले आए, मॉडल भी ठीक था, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत गई होगी. वो बोला ना यू हैव सक्सीडेड, तो फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव सक्सीडेड. क्यों लिख तो रहा है आफ्टर अ सिंसियर अटेम्प्ट टू ब्रिंग इन चेंज. क्लियरली लिख रहा है क्वेश्चन में कि आपने बिल्कुल सही तरीके से प्रयास करा है, और लिख भी रहा है कि यू द ऑपरेशनल हेड हैव सक्सीडेड
बट स्टिल योर ऑर्गेनाइजेशन couldn't अचीव द डिजायर्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। मतलब कमी कहाँ पर है? सो स्ट्रैटेजी बनाने में या लागू करने में? बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो आप स्ट्रैटेजी तो चेंज हुई, तो फॉर्मुलेशन में गलती का, इम्प्लीमेंटेशन से हमको फाइनल आउटपुट वैसा नहीं मिला ना। देखो तुमने, मैंने जितना, अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर मार्केट में सोचते हो मेरे को 20% अचीव करना है और तुमने सारा सब कुछ किया और तुम 17% पे पहुंचे, तो गलती किधर है, फॉर्मुलेशन में या इम्प्लीमेंटेशन में? बताओ। तो फिर आंसर इम्प्लीमेंटेशन आएगा ना। बिटिया डिसीजन अगर स्ट्रैटेजी बनाने का गलत होता तो बिल्कुल फेलियर हो जाती ना स्ट्रैटेजी, तब तो डायरेक्शन ही गलत जाता। यहाँ तो है कि हम डिजायर्ड पोजीशन नहीं पा पाए, मतलब एक रास्ते तक तो आगे गए हैं। वही तो बोल रहा हूँ, सक्सीड ही नहीं होते ना, फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम होती। तो सामने वाला सक्सीड हो गया है पर वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक जाना था। मतलब ये बात है, इंडिविजुअल में पास होगा और एग्रीगेट में कमी है। अब जल्दी समझ में आएगा तुम सब लोगों को। इंडिविजुअल में पास होगा, एग्रीगेट में रहेगा, इसका मतलब क्या कमी है? कम पढ़ा है या ढंग से आंसर नहीं लिखे हैं? Question 60. As a strategist, what is your understanding of how strategies are put into action? स्ट्रैटेजी एक्शन में कैसे आती है बताओ ये चार में से। Strategies are statement of intent realized through implementation. Strategies are statement of intent that are automatically activated. Strategies by themselves lead into action on by strategy formulation and not through implementation. बताओ how strategies are put into action. क्वेश्चन ध्यान देना। तो ये दे आर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रियलाइज थ्रू इम्प्लीमेंटेशन। ए 61 बढ़िया क्वेश्चन है। So the employees of XYZ have been facing problems regarding the difference between understanding of strategy formulation and implementation. उनको formulation implementation समझ में नहीं आ रहा। In order to address this problem, you the president operations make 4 groups and ask each group to write in points their understanding of the same. चारों ग्रुप ने अपना अपना जवाब दिया है। अब आप बताओ फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन वाला सही जवाब कौन सा है? फॉर्मुलेशन फोकसेस ऑन एफिशिएंसी while implementation focuses on effectiveness. The following points were compiled from their knowing of formulation implementation. Formulation requires motivation and leadership skills while implementation requires conceptual, individual, analytical skills. ये तो उल्टा है, ये सही नहीं है। Formulation is an intellectual process while strategy implementation is an operational process. Formulation requires coordination and implementation requires coordination among executives at top levels. अब क्वेश्चन में क्या पूछा सुनना। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्यूज व्हाट ऑल नीड्स टू बी करेक्टेड। मतलब सही वाले ढूंढना है या गलत वाले ढूंढना है? तो कौन कौन सा गलत है? फॉर्मुलेशन फोकसेस ऑन एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस? तो ये उल्टा लिखा है, तो ये गलत है एक तो। सेकंड वाला गलत है। फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स at middle lower level while for implementation requires coordination at top levels. गलत।
तो 1, 2 और 4 गलत हैं। हेलो, आंसर इज सी। ओके, अगला 62। हाँ मतलब ये आपने अगर ढंग से नहीं पढ़ा है ना मॉड्यूल, या मतलब आप ध्यान दो तो मैं फिर से कल वाली बात रिपीट करूंगा। मेरे नोट्स में मैंने टेबल बना के दिया फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन के, और जितने ये कीवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं आपके नोट्स में, अगर आप देखोगे बोल्ड में लिखे हुए हैं सारे वर्ड्स। तो बस आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, एवरीथिंग विल वर्क। 62. You being the core strategist of your company interested with bringing about strategic change, how will you initiate unfreezing of situation? 3 चीज होती है, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। तो अनफ्रीज में क्या करना रहता है, दुनिया को बताना रहता है। बताओ 62 का अनफ्रीज कैसे, दुनिया को कैसे बताओगे, अनफ्रीजिंग शुरू कैसे करोगे? प्रमोटिंग न्यू आइडियाज, प्रमोटिंग कंप्लायंस, प्रमोटिंग चेंज इन प्रोसेस, या नन ऑफ द अबव? अगर मैं बोलता हाउ टू ब्रिंग ओवरऑल चेंज, अगर मैं बोलता हाउ टू ब्रिंग चेंज सिर्फ अनफ्रीजिंग की जगह, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाता। यहाँ पूरा पूछा है या सिर्फ जानकारी देना है, अनफ्रीजिंग करना। तो अनफ्रीजिंग का मतलब होता है नए आइडियाज प्रमोट करना। hmm. 63. You are the head of operations of a company. When you focus on total or aggregate management function in sense of embracing the integrated activities of complete department, you are practicing. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपने ध्यान दिया हो तो। मैनेजमेंट कंट्रोल, इसमें सर ऊपर की कहानी गायब कर दी है इसने, वो बिंदल वाला क्वेश्चन था ना। Which of the following would be chosen by the core strategist to implement operational control? ऑपरेशनल कंट्रोल किससे सिलेक्ट होगा बताओ? ऑपरेशनल कंट्रोल एक, अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपके नोट्स ओपन करोगे तो मेरे नोट्स में स्पेसिफिकली कंट्रोल में नीचे ऑपरेशनल कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में डिफरेंस लिखा हुआ है। और अभी मई 22 की बैच वाले बच्चों को स्पेसिफिकली बताया भी था मैंने, अगर उनको याद हो तो, कि ऑपरेशनल कंट्रोल आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल ये चेक करता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो सही जगह पर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये तीनों जो वर्ड हैं ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के हैं। आर यू एबल टू सी अ चार्ट इन योर नोट्स? चैप्टर नंबर 8 एज फार एज आई रिमेंबर, कंट्रोल का चार्ट देखो। तो आंसर होगा इस पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल नहीं, ऑपरेशनल कंट्रोल ढूंढना है। तो आंसर है बजटरी कंट्रोल 64। 65. In which of the following circumstances would you initiate a strategic audit in your company? किसी को आवाज़ कम ज़्यादा आ रही है क्या, तो वो लॉग आउट करके लॉग इन कर ले। बाकी को किसी को शिकायत है नहीं, 1-2 बच्चों को है तो वो लॉग आउट करके लॉग इन कर लें प्लीज़। In which of the following circumstances would you initiate a strategic audit in your company? When top management feels the need, when the goals and objectives of strategy are not being accomplished, when a major change takes place in the external environment, and when the performance indicators reflect that, ये कायदे से 4th होना चाहिए, strategy is not working properly or is not producing the desired outcome.
सर ये तो चारों ही हैं, आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव 65 का। 66, when it comes to identifying problem areas and correct the strategic approaches that have not been effective so far, what should a strategic manager choose to do out of the following? Identifying problem areas and correct the strategic approaches that have not been effective so far. तो क्या करना चाहिए उसको? बीपीआर तो प्रोसेस का होता है, बेंचमार्किंग भी वन एक्टिविटी की होती है, स्ट्रैटेजिक चेंज जब लाना हो तो होल ऑर्गेनाइजेशन को करवाना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजिक ऑडिट का क्या होगा? कम्स टू आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एरियाज एंड करेक्ट द अप्रोचेस, आंसर होगा स्ट्रैटेजिक ऑडिट भाई, 66 का डी। With reference to Richard Rumelt criteria for strategic audit, what out of the following is the first limitation against when strategy is audited? Limitation क्या है? First limitation, strategy audit की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रैटेजी जब आप चेक करने जाओगे तो स्ट्रैटेजी ऑडिट करने वाले जो लोग हैं वो सस्ते मिलेंगे या महंगे मिलेंगे? सर महंगे मिलेंगे, मिल जरूर जाएंगे। फिजिकल रिसोर्स की तो कोई दिक्कत नहीं, तो फाइनेंशियल रिसोर्स इज अ प्रॉब्लम। सर 68, compliance identification CII are three processes involved in ये चेंज प्रोसेस के अंदर है, और चेंज प्रोसेस के अंदर क्या था? अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। चेंज के अंदर था CII, तो बताओ किस में जाएगा ये 68 वाला? ये सारे वो वाले टॉपिक खुल के सामने आ गए हैं जिनको तुम लोगों ने आखिरी में मजाक मजाक में पढ़ा ही नहीं होगा, मेरे को मालूम है। लास्ट चैप्टर रहता है ना तो बच्चे मस्ती में आ जाते हैं, अरे तो लास्ट चैप्टर है क्या करना है, आराम से खेलते रहेंगे। अब देखो आ गया वो सामने, थोड़ा सा बारीक छिन छिन के आया क्वेश्चन उसमें से। सर बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज कर रहे हो आप, 68 का आंसर आएगा सी। 69, as a head of MNC you have been asked to bring in radical changes in your organization through BPR. Which is the thrust area? Thrust means main focus. सबसे मेन क्या होता है? The thrust area is reduce cycle time. ऐसा डायग्राम बना होगा एक वो आपके नोट्स में, ऐसा वाला। ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ होगा। So the answer will be 69 का 1 टोटल साइकिल टाइम। याद आ रहा है? ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है नोट्स में। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व व्हाट? Business process re-engineering involves massive improvement, sir.
71. Strategy evaluation is more difficult today due to the following trends except. वापस से स्ट्रैटेजी ऑडिट के लिमिटेशंस नहीं है, सबसे लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लिमिटेशंस खोल के देखो तो एक्सेप्ट ड्रामेटिक इंक्रीज इन एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो होता ही है डिफिकल्ट के लिए, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर विद एक्यूरेसी, increasing number of variables in the environment, firms have unlimited resources, no, firms unlimited resources तो होते नहीं पहली बात, और उसके कारण स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन का कोई सवाल नहीं उठता। आंसर इज डी, ऑप्शन 4। Sir, with reference to benchmarking, select the correct statement out of the following. benchmarking को ध्यान में रखते हुए, the focus of benchmarking is to study the existing process and eliminate the ones that are redundant. Traditional controlling helps rephrased as benchmarking, no. It helps in setting goals and measuring productivity based on industry best practices. Sir, answer 3, 72 का। BPR is an unusual improvement in operating effectiveness through the redesigning of dash। कौन सी प्रोसेस को सुधारते बीपीआर में, कोर या नॉन कोर? कोर का दूसरा नाम क्या है? कोर का दूसरा नाम क्या है? क्रिटिकल। 74th, the purpose of strategy evaluation is to increase the budget, alert management to problems or potential problems, make budget changes, evaluate employees performance। क्या होता है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन का पर्पस? सर स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट कर रहे हो तो एक की चिंता नहीं सबकी करते हो। 74B, हर्षिता का आंसर गलत है। बजट चेंज करता है क्या स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन? हर्षिता और ये प्रांजल, ये तुम लोग है ना पैसे से बाहर ही नहीं आ रहे हो, दादा एफएम पढ़ लिया लगता है। स्ट्रैटेजी बिगर कॉन्सेप्ट, फाइनेंस is a part of overall strategy. ओ सॉरी, सी इसने बोल दिया हर्षिता ने, सॉरी सॉरी बेटा। विच वन इज नॉट द बेसिक एक्टिविटी ऑफ स्ट्रैटेजी ऑडिट? ये ना इतने क्वेश्चन करा देगा अपने को स्ट्रैटेजिक ऑडिट के, टॉपिक नहीं भी पढ़ा हो तो रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। नॉट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजी ऑडिट, बताओ। एग्जामिनिंग द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ फर्म स्ट्रैटेजी, ये तो है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट विद एक्चुअल रिजल्ट। सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का काम स्ट्रैटेजी ऑडिट का होता है या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का होता है? तो सर ये तो फॉर्मुलेशन का काम होता है ना, आंसर है बी, 75B। Which one is not a type of strategic control? सर्वेलेंस है, अलर्ट है, प्रीमाइस कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल। 76A, हाँ ये बढ़िया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लाइज विथ whom? The responsibility of efficiency effectiveness lies with whom? आंसर होगा सी,
ऑपरेशनल एंड टॉप मैनेजमेंट। हिनल गलती कर देगी। एफिशिएंसी इज ऑपरेशनल, इफेक्टिवनेस इज टॉप लेवल। रिद्धि त्रिवेदी मैडम, ऑफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आप फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन का टॉपिक निकालिए, वहां पर एक वो कछुए और वो वाला फोटो बना हुआ है, नोट्स निकालो, उसमें है ना एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में कछुआ और खरगोश एक बोट में जा रहे हैं ऐसे यूं ऐसे उल्टे, वहां पे लिखी हुई है लाइन, मेरे को नोट्स की पोजीशन तक याद है। वहाँ लिखा रहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी इज एसेंशियली इंट्रोस्पेक्टिव एंड इट लाइज विद द ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड इफेक्टिवनेस इज द एबिलिटी टू लिंक टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। दिखा? 78 which of the following is not true for strategy formulation and implementation matrix? अभी आपको ABCD याद होना चाहिए। Company in square A would focus on implementing strategy successfully. Company in square B is the ideal situation. Square D would focus on readjusting the implementation, and company in square D would focus on redesigning their strategy. अब ABCD वाइज बताओ। रिद्धि, बी में तो आइडियल सिचुएशन है, वो तो हम सबको पता है, नॉट ट्रू पूछ रहा है वो। आज वो आया नहीं क्या जयेश, हमारा बॉडी बिल्डर आज पार्टिसिपेट ही नहीं कर दिया। आया नहीं आज, क्या होगा आंसर? सर आंसर आएगा इसका सी, नहीं सॉरी 78 का आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट बहुत परेशान करेगा तुम लोगों को। वन ऑफ द इश्यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सर रिसोर्स अलोकेशन है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन है, मार्केट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। 79 का डी, यस दिस इज द आंसर। अब ये कहां पर है पता है आपको? स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन जहां से चालू होता है ना टॉपिक, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन खत्म होता है, उसके बाद देखना ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन टास्क दिखा है, वहां पे 3 पॉइंट्स लिखे, रिसोर्स अलोकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर्स। ये चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, 8th की, सॉरी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सर इट इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ऑप्शन 2 80 का बी, ये इजी था। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अडेप्टिव स्ट्रैटेजी, 81 बी। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी इन इम्प्लीमेंटेशन इन SM प्रोसेस आर अंडरटेकन बाय, 82 का आंसर होना चाहिए 4 ऑल ऑफ द अबव, सबकी जिम्मेदारी है फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजीज? रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजीज, सर रियलिस्टिक और अटेनेबल अब किसी लेवल वाइज नहीं बोला उसने, नो लेवल हैज बीन मेंशन्ड। और अगर वो बोलता रियलिस्टिक एंड अटेनेबल
एक्टिविटीज, तो मेरा आंसर सी होता। अगर रियलिस्टिक एंड अटेनेबल एक्टिविटीज बोलता तो मेरा आंसर सी होता, पर इसने बोला रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजीज, तो इसका मतलब जिम्मेदारी सबकी होगी, तो आंसर विल बी ऑप्शन 4, कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर। बारीक सेंटेंस को पढ़ना सीखो। Strategic management enables an organization to do dash instead of companies just responding to threats. 84 का बोलेगा to be proactive instead of companies responding to threats in their business environment. बराबर। हम्म 84 के बाद 86, 87, 85 कहाँ गया? ये 85 था, सॉरी 86 नहीं, बराबर 84 ही था ये, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार एक क्वेश्चन मिस हो गया, एक सेकंड बच्चों मेरे को चेक करने दो। 86 कौन सा है? ये 85 है। फिर कैलकुलेशन में कहीं गलती कर गया बच्चा हमारा। 85, रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। ओके करते हैं भाई। स्ट्रेटेजीज हैव शॉर्ट रन implications. Strategies are action oriented. Strategies are readily defined. From the combination given below, select an alternative that represents that statements are true. शॉर्ट रन इम्प्लीकेशन एंड एक्शन ओरिएंटेड, रिजिड तो नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती हैं। तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कहाँ है? ये 1 और 2, सॉरी ये ए, 85 का ए। अब ये 86 होगा है ना? एक मिनट यार, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना एक क्वेश्चन। What involves formulating, implementing and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objective. एट्टी 87 का आंसर होना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सॉरी 86 का। यस 86 का आंसर होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सब तो आ गया, 1 2 3 फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, सब तो आ गया। अच्छा ये 87 और ये 87 हो गया, ठीक है, अब सही हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव, 87 का डी। यस फिर 88, अब सही जा रहे हैं। A good business strategy is formulated based on organizations
ऑप्शन 3 आना चाहिए 88 का सी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। 89, which of the following statement is true? Business is for small, strategy is for big, no. Policy is a subset of strategy, no. Policy is a subset of strategy, बिल्कुल गलत। Policy is basis of strategy. Policy is made by corporate and strategy is made by business, no. Policy talks about what to do and strategy talks about how to do। हाँ, ये होगा ना आंसर, ऑप्शन 4। 18 क्वेश्चन नंबर 90 सही बात है ना। हाँ, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल कंपनीज। आंसर होगा ऑप्शन 3 90 का। 91, attractiveness of the firms while conducting industry analysis should be seen in। attractiveness is an absolute thing or a relative term? सर रिलेटिव टर्म, तो आंसर होना चाहिए 91 का ए। रिलेटिव कैसे? किसी के लिए जो प्रॉफिटेबल है दूसरे के लिए लॉस मेकिंग हो सकता है। अपन ने क्लास में पढ़ा है कि जो बेनिफिशियल लोकल लेवल पर हो सकता है वो नेशनल लेवल पे नहीं चल सकता, और जो नेशनल लेवल पे बेनिफिशियल है वो लोकल लेवल पे नहीं चल सकता। 8वीं चैप्टर नंबर 2 मेथड ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस का 7वां पॉइंट फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है। ये अट्रैक्टिवनेस इज अ रिलेटिव टर्म। बहुत सारे बच्चों के दिमाग के बहुत सारे धागे खुल रहे होंगे अभी, यार इसको तो हलवा पूड़ी समझ के बैठे थे कि निकाल लेंगे, यहाँ आके लैला नचा रही है तुमको। इस बात से खुश हो जाओ कि अभी भी 15 दिन हैं पाप धोने के लिए। कब है पेपर तुम्हारे सेकंड ग्रुप के? मुझे डेट भूल गया मैं तो। 24 से है ना, बढ़िया। चलो 92 कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन कस्टमर वैल्यू एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। ये तीनों क्या हैं? आपको याद हो तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के वो हैं या कोर कॉम्पिटेंसी के हैं? कोर कॉम्पिटेंसीज मतलब ये बात है कि कोर कॉम्पिटेंस किस रूप में आ सकती है। तो ये 3 मेन हेडिंग पॉइंट्स हैं उसके, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन 1, कस्टमर वैल्यू 2, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस 3। 93 a tool by which management identifies and evaluates the various businesses that make up a company is termed as portfolio analysis। वैल्यू चेन ऑपरेशनल लेवल का है, कंपटीशन एनालिसिस इंडस्ट्री का है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस भी ओवरऑल होता है। यहाँ वेरियस बिजनेसेस दैट मेक अप अ कंपनी तो होगा पोर्टफोलियो। 94 एन एडवर्टाइजमेंट्स इन have roux afza with milk and lassi too, which strategy the company is trying to use? Product development। लस्सी टू, रूह अफ़ज़ा शरबत के साथ साथ दूध में भी पियो और लस्सी में भी पियो। मोर सेल्स टू न्यू कस्टमर है या मोर सेल्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर है? पेनिट्रेशन। $94 the goal of SWOT is to dash the organization opportunities and strength।
while dash its threats and dash its weaknesses. Capitalize the organization, exploit the opportunities and strengths while neutralize the threat and correct its weaknesses. आंसर 2 होना चाहिए 95 का. हाँ, exploit while neutralizing threats and correcting weaknesses. (96) External opportunities and threats are usually external opportunities and threats are usually there are uncontrollable activities outside the organization. 96D. 97. The sustainability of competitive advantage and a firm's ability to earn profits from its competitive advantage depends on. competitive advantage में क्या क्या होना चाहिए? 4 बातें. ड्यूरेबल, ट्रांसफरेबल, नॉन इमिटेबल एंड अप्रोप्रिएबल. ये रिलायबिलिटी गलत है. यहाँ पे रिलायबिलिटी यहाँ गलत है, रिलायबिलिटी गलत है. आंसर होगा बी. अब ये कोर कॉम्पिटेंसी की 4 बातें हैं, सॉरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की. वहाँ पे जैक वेल्च बना होगा यूं करके आपको, इफ यू डोंट हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डोंट कॉम्पीट, ऐसा लिख रहा होगा. इमिटेबिलिटी लास्ट वाला है. Anything that a firm does specially well compared to rival firm is referred to as competitive advantage. 98 का A. The emphasis on product design is very high. The intensity of competition is low and the market growth rate is low in dash stage of industry life cycle. Product design is high, competition is low and the market growth rate is low. Dash. 99 का होना चाहिए A. प्रोडक्ट डिजाइन पे ज़्यादा ध्यान है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है. अभी ठीक है माइक? मैच्योरिटी नहीं होगा बच्चे. इंट्रोडक्टरी ग्रोथ, मैच्योरिटी डिक्लाइन. ग्रोथ रेट स्लो डाउन है पर वो बोलता है कंपटीशन भी लो है. मैच्योरिटी में कंपटीशन लो थोड़ी ना होता है. और डिजाइनिंग हाई नहीं होती मैच्योरिटी में. सर शुरुआती दौर में हम प्रोडक्ट को नया बनाने की कोशिश करते हैं, तो आंसर वुड बी इंट्रोडक्शन सर. 99 का ए. वेरी गुड क्वेश्चन. हंड्रेड GE 9 cell matrix is based upon. सर वो 9 cell matrix है ना, वो ट्रैफिक लाइट मॉडल. अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ 100th का ए.
कल हम लोगों ने 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोगों के 1 घंटे में 50 क्वेश्चन हो गए हैं। स्पीड बढ़ गई है हम लोगों की। हिम्मत ताकत है। और पढ़ लें थोड़ा सा कि ब्रेक चाहिए 5 मिनट का। हाँ, तो पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं। मेरे को 5 मिनट दो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं बस। मेरे को 5 मिनट पानी पीने का ब्रेक दे दो ना। मैं पॉज कर रहा हूं, वीडियो में तो बराबर दिखेगा। कैमरा डिसेबल कर रहा हूं 5 मिनट के लिए, ठीक है। वीडियो वालों के लिए तो पॉज रहेगा, तो उन्हें ब्रेक नहीं है जो रिकॉर्डिंग देखेंगे।